Hi everyone, this is Richa Mehta, your host of this series of chat shows which we are going to bring to you every Saturday. The talk show and the talk show which was very successful and super hit in 2021 is now back in 2024. What all we have for you is a surprise which you're going to see in the coming weeks. To start with, I am Richa Mehta, brand ambassador of Ram Ratan Group. And from today, I'm going to have series of entrepreneurs, industrialists, HNIs, and everybody right in front of you to ask questions. If you also have few questions, you can just write on the platform and we will take it up. This is Luxury Living Talk Show by Ram Ratan Group in association with Richa Mehta. Now, just to brief you about what it's gonna be, what all will be in stock, and जैसा बोला जाता है कोई भी talk show हो उसमें rapid fire round तो जरूर होना चाहिए. We also have a rapid fire round with the first guest on this chat show. हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं. ये सिर्फ ग्रुप के बारे में बात नहीं है, एक लेगेसी के बारे में बात है. As it's they are pioneers in real estate from last 40 years. Ram Ratan Group, with a legacy spanning over 40 years, is a pioneer in land and developing farmhouse communities. They are taking strides and setting unmatched standards in the real estate industry with the opportunity they are providing their clients on Delhi Mumbai Expressway. मैंने वैसे सुना तो था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में while I was going through, though I'm not being biased since I'm the brand ambassador, but we have so many people who only talk about Ram Ratan Group. How often in India, longest expressway built, connecting India's two most successful cities. This and much more investment opportunities are provided by Ram Ratan Group. Let's see and understand how. The vision and success is led by Mr. Vijay Chaudhary, the chairman of Ram Ratan Group, the second generation of the group. He is a big part in the development of Navgaon. He brings a fresh perspective and innovative ideas as a visionary leader in the realm of real estate development. His expertise lies in creating sustainable living environments that blend modern amenities with natural landscapes, making him a prominent figure in the industry. Let's hold us and let's welcome the chairman of Ram Ratan Group, Mr. Vijay Chaudhary. Hi Vijay ji. बहुत बहुत नमस्ते आपको रीचा जी और आपके सारी ऑडियंस को. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक. हमने एक चैट शो किया था अगर आपको याद हो 2020-2021 में, और अब उसी चैट शो को जोरों शोरों से अब तो उसके वहां से लेके यहाँ तक तो हमने काफी सफर पार कर लिया राम रतन ग्रुप के साथ. बिल्कुल किया था. 2021 में कोविड का टाइम था, लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे, और उस वक्त हम लोगों से डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. और थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीबडी, उस वक्त भी काफ़ी लोग हमसे जुड़े, ग्लोबली काफ़ी लोग हमसे जुड़े, और सबका धन्यवाद. और फिर एक बार मौका मिला है कि हम लोग आपस में बात करें, अवेयर करें लोगों को, और कैसे बेटर लाइफ जी सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें. अच्छा, हम जब नए लोगों से मिलते हैं विजय जी तो सबके मन में एक बात होती है, रियल एस्टेट ही क्यों? राम रतन ग्रुप, रियल एस्टेट एंड विद अ लेगेसी ऑफ 40 इयर्स. देखिए, रियल एस्टेट एक रियल इंडस्ट्री है, और भारत की पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है कि जड़ जुरू जमीन का जब हम बात करते हैं तो बड़ा मान सम्मान से करते हैं. और मैं ज़मीन की बात करता हूँ आज. तो ज़मीन होना, लैंड होना, पीस ऑफ लैंड होना रियल एस्टेट सेक्टर में ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. पिछले 40 साल से राम रतन को ये विरासत मिली, मौका मिला, और हम इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं सबके साथ. ये हमें मौका मिला. तो व्हेन इज कम टू रियल एस्टेट, इज रियल लाइफ, इज रियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इज रियल थॉट प्रोसेस, and nothing better than land, because actually you are owner of a piece of land, is respectful, is profitable. And again I say कि पुरानी विचारधारा है कि जमीन आपके नाम होना है, जमीन का पार्ट आपके नाम होना, ये बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल सच है. जमीन के लोग बोला जाता है, मोदी जी भी बोलते हैं जमीन से जुड़ो, एंड आई थिंक राम रतन ग्रुप बिल्कुल उसको खड़ा उतरा है, और 1-2 साल नहीं 40 साल. देखिए जी, बिल्कुल आपने मोदी साहब का नाम लिया. जो उनकी विचारधारा,
आज उन्होंने बनाई, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ ला रहे हैं, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट आज इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है, भारत का स्वरूप बदल रहा है, भारत का विचार बदल रहा है, भारत का हर सेक्टर बदल रहा है। तो उसी बदलते सेक्टर में रामरतन ग्रुप भी बदल रहा है, रियल एस्टेट भी बदल रही है, और अब समय है नई चीज करने का। और मोदी साहब ने इस बारे में बड़ा पब्लिकली कहा है कि भाई 2 टायर 3 टायर सिटीज को डेवलप करना चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रख के हम लोगों ने नवगांव की तरफ मूव किया, जो गुड़गांव के 1 घंटे के दायरे में है। और जब सरकार किसी चीज को सपोर्ट करती है, कनेक्टिविटी बेटर होती है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर बहुत पोटेंशियल भी है और पॉसिबिलिटीज भी है। एब्सोल्युटली। एक चीज बोली जाती है कि कस्टमर्स चेंज, कस्टमर का जो तौर तरीका है, उनका जो रहन सहन है, उनकी बातें हैं, ओवर द टाइम वी हैव इवॉल्व्ड। हमारे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जो प्रोजेक्ट है, और हम वहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक कैसे रहते हैं विजय जी, और इस बारे में रामरतन ग्रुप का विजन क्या है? देखिए, समय के अनुसार चीजें बदल रही हैं। आफ्टर कोविड लोगों के विचार बदले। मैं एक शॉर्ट में आपको कहूंगा कि वाई नवगांव, देयर आर सेवरल रीजंस। इतिहास भी है, वर्तमान भी है, और वर्तमान के अनुसार बहुत बड़ा भविष्य भी है, जिसके अंदर नाम भी है, पैसा भी है और रुतबा भी है। कल मैं जी। किसी के साथ बैठा था शाम को, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक फार्म लाइफ को जीने के लिए, समझने के लिए, या अपने ऑफिस को फार्म से रन करने का मन बना रहे हैं। तो पहले था वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम आउटसाइड, वर्क फ्रॉम एनीवेयर डिजिटली। नाउ पीपल आर वेरी मच कीन कि वर्क फ्रॉम फार्म। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ दी जाए जो आपको पर डे घर आने जाने में भी दिक्कत ना हो, वीक में आने जाने की दिक्कत हो। इसलिए हम लोगों ने नवगांव को बाय कनेक्टिविटी, बाय ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड बाय नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने बड़ा उस पर फोकस किया है। बिल्कुल। सो हम जो एमिनिटीज की बात करते हैं, क्या रामरतन ग्रुप का एक्सपीरियंस जिसके लिए वो जाना जाता है, व्हाट इज डिफरेंट व्हेन वी कंपेयर रामरतन ग्रुप टू डिफरेंट द अदर रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज? एमिनिटीज क्या क्या है? देखिए, एवरीबॉडी, हर डेवलपर का अपना एक विजन होता है। हर डेवलपर अपने थॉट प्रोसेस के साथ काम करता है। रामरतन का थॉट प्रोसेस जो है, वो आज 2 जनरेशन को मैच करने का, जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनके मुताबिक भी चलना, उनके मुताबिक माहौल, मौका और इन्वेस्टमेंट प्लान लाना, या कम्युनिटीज़ को लाना, और जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, जितनी हम फास्ट बात करें, जितनी डिजिटल डिजिटल की बात करें, जिस तरह से सरकार आज सर्विसेज हमको अवेलेबल करा रही है, तो मेन जो रामरतन का आज मोटिव है, टू प्रोवाइड success when it's come to services, when it's come to basic informations, when it's come to stress free legal documentation protection and community। देखिए, जब तक हम कम्युनिटी नहीं बसाएंगे तो कम्युनिटी लिविंग की बात भी नहीं करेंगे, और जब हम कम्युनिटी लिविंग की बात करेंगे तो धीरे धीरे हम एक नया परिवार बसाएंगे, उस परिवार के बीच में रहेंगे। तो रामरतन ने फार्म में भी इस चीज को अमल किया, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए रामरतन इस चीज को आगे बढ़ा रहा है कि कम्युनिटीज मजबूत हो। कम्युनिटीज से ही आई थिंक, अगर हम जहाँ पे डिफरेंट उसकी बात करते हैं, आपने कुछ बेनिफिट्स बताए कम्युनिटीज में जो फार्म हाउस ओन करते हैं। हम बेनिफिट्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो हम एक बात हमें पता है जो आई थिंक हर किसी के मन में रहती है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। बिकॉज आपको पता है रियल एस्टेट में, मैं मानती हूँ कि लैंड से जुड़ते हैं, मैं मानती हूँ कि सबसे ऐसा बोला जाता है कि जब हम रियल एस्टेट से जुड़ते हैं तो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट व्हिच वी डू, एंड उसका रिटर्न भी उतना ही अच्छा है। लेकिन बहुत फ्रॉडलेंट चीजें भी होती है, आपको भी पता है कितने सारे लोग इससे गुजर रहे हैं, कितने सारे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बायर्स है, बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स बायर्स के साथ कितना बड़ा इशू होता है। तो हम इसमें ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, नेगेटिविटी तो है, पर आप पॉजिटिव भी देखिए। कितने लोग रियल एस्टेट से बने हैं, कितने लोगों को आज रियल एस्टेट की ग्रोथ के बारे में जानकारी है। आप 80% भारत का जो ग्रोथ में देखते हैं, उसमें 80% लोग रियल एस्टेट से बने हैं। आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव लाइए। समय है पॉजिटिव को लाने का, समय है उस नेगेटिविटी को खत्म करने का, और समय है हम जैसे पुराने घरों को या और भी समझदार रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को आने का और विश्वास देने का, प्रोडक्ट देने का। डिलीवरी इज अ मदर। सी, कोई भी डिलीवरी, एब्सोल्युटली। डिलीवरी की जब बात करेगा, प्रोडक्ट को डिलीवरी की ये सोच के बात करेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने अपने लिए बनाया, अपने कस्टमर के लिए बनाया, अपने ऑडियंस के लिए बनाया, अपने ब्रांड को प्रेजेंट करने के लिए मार्केट में बनाया, तो वो कभी नेगेटिविटी की तरफ लेके नहीं जाएगा। जो नेगेटिव होना था वो हो गया। अब बहुत बदलाव है, सरकार की तरफ से भी बदलाव है, डेवलपर्स की तरफ से बदलाव है। बट मैं इस नेगेटिव पॉइंट पे पहली बार आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि हम नेगेटिव की बात तो करते हैं, जो कि ठीक है,
बट हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी की सक्सेस का कारण रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट में भी लैंड है। वी हैव टू मानना पड़ेगा हमें कि भारत की, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण आज जो जिस लग्जरी को हम लोग एज ए सेकंड जनरेशन बहुत से लोग जी रहे हैं, तो सही समय में उनके बुजुर्गों ने लैंड को लिया, रियल एस्टेट में अपना आप को इन्वॉल्व किया, एंड दे आर ऑल आर बेनिफिशियल टुडे। जी बिल्कुल, एंड जितने लोग रियल एस्टेट से जुड़े वो हमेशा ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स मैं नेगेटिव बात का आपने बोला, और ये मेरा क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि बहुत लोग हैं और अभी भी वो केस लड़ रहे हैं, या वो अभी भी बिल्डर्स के पीछे या उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्या 2-3 चीजें हैं विजय जी जो आप बोलना चाहेंगे कि एक अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे पेपर स्ट्रांग है, रामरतन ग्रुप के पेपर स्ट्रांग है, मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन जैसे बहुत लोग पूछते भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन रख रही हूँ, क्या 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि अगर मैं पैसे डाल रही हूँ किसी रियल एस्टेट ब्रांड में, क्या 2-3 चीजें हमें याद रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट टिपिकल आंसर बनते हैं इसके, और मैं बहुत सोच के बोलने में बिलीव करता हूँ इन मामलों में। बट एनीवे, देखिए, आदमी की जो डेवलपर है, कोई भी डेवलपर है, जो ब्रांड ओनर है, वो मैटर करता है, जो मीडिएटर है वो मैटर करता है, और जो ब्रांड ओनर है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जैसे जिस तरह से सरकार चली उसी तरह से कंपनी चलती है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो उसने पॉलिसीज बना के मार्केट में दी, अगर वो उस पर अमल करता है तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं होगी अल्टीमेटली। और खासकर हमारे सेक्टर में, जो सेक्टर्स की आप बात करें, वहाँ पे बायर सेल एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। हमारे सेक्टर में क्या है कि जिस वक्त आप आए, आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने अपने एक वो हार्ड एंड मनी हमारे से पुट अप किया, एंड यू आर गेटिंग रजिस्ट्रेशन इन योर नेम, वेरी फर्स्ट डे यू आर गेटिंग पीस ऑफ लैंड इन पेपर योर, वर्क इज स्ट्रांग। strong is very strong because we don't believe in bias and agreement all. अब वो दौर नहीं है कि 15 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बढ़ना हो। आज के इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा, ब्रांड से मान ले, रेडी टू मूव चीज में जाए, और जो आदमी दे रहा है उसकी फेस वैल्यू पे विश्वास करें। उस वो, क्योंकि वो जो अपनी फेस वैल्यू की बात करेगा वो डिलीवरी की बात करेगा, और जो सच डिलीवरी है, की बात बिल्कुल करेगा सच वो है। कभी भी नेगेटिव की तरफ किसी भी चीज पे नहीं ले जाएगा। जी। सो पेपर वर्क, फेस वैल्यू एंड डिलीवरी, दीज आर द 3 थिंग्स जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक हैं जो आपको काफी फॉलो करते हैं और उन्होंने ये क्वेश्चंस डाले थे, तो मेरे को जरूर था कि मैं एटलीस्ट खुद में से सारे नहीं तो कुछ क्वेश्चन जरूर आपके सामने रखूं। एक और क्वेश्चन है, कोविड के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोविड से पहले भी, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जागरूकता बहुत बढ़ी क्योंकि लोग नेचर के पास आना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग विद रिस्पेक्ट टू रामरतन ग्रुप, इसका कैसे आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देना, बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, पहले भी था, बिल्कुल सही आपने कहा। पहले ज़्यादा था, बीच में कम हुआ, अब उसकी जागरूकता ज़्यादा है। एक तो जनरेशन का बदलाव है, नई जनरेशन को उसके बारे में बताना हम लोगों का फर्ज बनता है कि भी ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब है एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, वाटर का ध्यान राइट, रखना, एग्जैक्टली। का ध्यान रखना, अच्छी खेती का ध्यान रखना। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, जब आदमी नेचर का ख्याल करता है, इन्वायरमेंट का ख्याल करता है, किसी भी ट्रीज एंड वाटर बॉडीज का ख्याल करता है, तो उसके मन में एक अच्छापन आता है, एक पॉजिटिवनेस आती है। कभी भी आप नेचर के साथ बैठिए, कभी भी आप नेचर के नजदीक बैठिए, तो आपको किसी भी लाइफ कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नेचर ही बहुत बड़ा लाइफ कोच आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है। नई जनरेशन को हमने गाइड किया कि देखिए जी, नेचर के पास जाइए, इन्वायरमेंट का भला सोचिए, आप फार्म्स की लाइफ की तरफ जाइए जहाँ पे आपको बेटर लाइफ भी है, बेटर इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है। एंड ऑर्गेनिक की जहाँ तक आपने बात की, देखिए, लाइफ बहुत फास्ट है, पर फिर भी अगर हम कर सकते हैं, और अगर आज पॉसिबिलिटीज रामरतन ग्रुप बना रहा है, और मैं तो इसमें ये भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप फार्म ओनर हैं या फार्म ओनर नहीं भी हैं, फिर भी हम आपको एक लग्जरी लाइफ, जिसको कहा जाता है एक अच्छी इन्वायरमेंट, जिसको कहा जाता है अच्छा खाना, जिसको कहा जाता है अच्छा पीना, जिसको कहा जाता है अच्छे सराउंडिंग्स, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश से प्रोवाइड करें। और आप एज अ परचेजर नहीं आ सकते, तो एज अ गेस्ट आइए, उस लाइफ को जीजिए, क्योंकि पैसा हमने जिंदगी जीने के लिए कमाया है, जिंदगी खोने के लिए नहीं बनाया है। और अगर आपको जिंदगी सही मानने में जीनी है, तो कुछ पल आपको इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ बिताने ही पड़ेंगे। बिल्कुल बिताने पड़ेंगे, और यही एक चेंज है जो मैंने भी बहुत देखा मेरे जनरेशन में। मैंने पाया कि नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग जहाँ वो एक क्लीन ब्रीथ, एक बोलते हैं, एक सांस ले सके, जहाँ पे ग्रीनरी हो, क्लीन एयर हो, उसकी बहुत जरूरत है ना। आई थिंक दे आर एबल टू फुलफिल रामरतन। एक पर्सनल क्वेश्चन है विजय जी, मैं इनफैक्ट आपके साथ जब भी मैं मिलती हूँ मीटिंग में, तो मैं देखती हूँ कि हमारा जो रिटेंशन रेशियो बोला जाता है, जो हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट के बारे में बात की जाती है,
I have seen, of course, आप हमारी ये सेकंड जनरेशन है जो आप विजय जी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन इज ऑल्सो देयर नाउ. हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स आगे हमें रेफर कर रहे हैं और उसके आगे भी रेफर कर रहे हैं. एक पिछला किस्सा था जब मैंने देखा था दैट देयर वाज समबडी जो आपसे मीटिंग करने आया था और उसने बोला था कि मैं आपके साथ फार्म हाउस ओन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी आपके साथ फार्म हाउस ओन करे. तो ऐसी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसा क्या सेटिस्फैक्शन पॉइंट है जो रामरतन ग्रुप फुलफिल कर पा रहा है? पर्सनल केयर. पर्सनल केयर. आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी कस्टमर है, किसी भी रेशियो में आता है, किसी भी वैल्यूज में आता है, किसी भी थॉट के साथ आता है, जो हमारा मैनेजमेंट है. और मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से हमारे साथ जितने भी हैं, चाहे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, चाहे वो एसोसिएट्स हैं, चाहे वो पार्टनर्स हैं. मैं तो ये कहूँगा 20-25 साल आज उनको हो गए हैं, वो किसी भी सेक्टर को संभालते हैं, किसी काम को संभालते हैं. तो जब रामरतन ग्रुप का जो एटमॉस्फेयर ऑफ वर्किंग है टूवर्ड द क्लाइंट, वो बहुत डिफरेंट है. मेरी कोशिश और मैनेजमेंट की कोशिश और हमारे सब पार्टनर्स की कोशिश, सब साथियों की कोशिश रहती है कि हर कस्टमर को एक बार पर्सनल टच दिया जाए और उनको विश्वास दिया जाए कि जी आप चिंता मत करिए, आपके हम साथ हैं और हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा. अब देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनरेशन टू जनरेशन अगर हम एक अच्छा काम करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन तो मूव करना ही चाहिए. अगर हम जनरेशन टू जनरेशन मूव नहीं करेंगे, जितनी जगह हम नया बैठेंगे, कुछ नया सीखेंगे जरूर, पर पुराना भी क्यों छोड़ें. इसलिए रामरतन ग्रुप की कोशिश रहती है कि हम वो रिश्ता बनाएं जो जनरेशन टू जनरेशन जाए. हम रियल एस्टेट हैं, हम लैंड हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होता है. आपको इस बात को ख्याल होना चाहिए कि रामरतन मीन्स वेरी लाइफ इज लग्जरी, और लग्जरी मीन्स यू कंटिन्यू दिस थिंग फॉरएवर. Absolutely, it's a forever thing, and of course, I've never seen a land depreciating. It always appreciates, it's appreciating asset. And for people like us, जो बहुत ही mutual funds, SIP, of course, it's not wrong also. But then I feel I am a particular example that when I'm investing with Ramathan Group, I have seen the change, and it's something which is gonna stay forever, generations to generations. बिल्कुल सही बोला. I would request the backend team to play a video which talks about Ramathan Group and the investment opportunities. बहुत ही प्यारी वीडियो थी, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम लोग एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस टू आवर फ्यूचर एपिसोड्स हम दिखाते रहेंगे सबको. विजय जी, व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? देखिए, अभी हम लोग नवगांव में विद द बैनर ऑफ रामरतन ग्रुप, डालमिया रामरतन ग्रुप, फार्म कम्युनिटीज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, टाउनशिप्स भी ला रहे हैं. और हमारा मानना है कि हम आने वाले दिनों में एक ऐसी एग्रीकल्चर जोन लाएंगे जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर किया जाएगा. एग्रीकल्चर इज द बेसिक नीड ऑफ टुडे, क्योंकि भारत की पहचान एग्रीकल्चर. और भारत में जब नवगांव की हम बात करेंगे, वहाँ पे पानी, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, और वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी है. तो मेरा फोटो ये है कि जिस तरह से फार्म कम्युनिटीज बना रहे हैं, जिस तरह से टाउनशिप बना रहे हैं, उसी तरह से एक एग्रीकल्चर जोन बनाया जाए और जिसके अंदर पोटेंशियल लाया जाए. भारत सरकार ने भी इस चीज़ को फोकस किया है कि बड़े बड़े फार्म ऑनर्स बने, जिससे खेती को बढ़ावा मिले और ग्रोथ हो. इनकम इन एग्रीकल्चर टुडे इज गोइंग टू बी डबल इन ईयर. तो मेरा फोटे एज अ डेवलपर एग्रीकल्चर भी है. एंड अगेन देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच आर कमिंग. समय के साथ हम आगे आपको बताते रहेंगे. हमारा अभी एक ही सोच है कि किसी भी तरीके से जो आज से 40 साल पहले छतरपुर बना दिल्ली में, और अपने आप में एक पहचान है, अपने आप में एक सबके लिए वो ब्रांड है, इसी तरह से रामरतन ग्रुप की फिर कोशिश है कि अलवर नवगांव को नया छतरपुर का नाम दिया जाए, नई छतरपुर की तरह से बसा जाए, बट बेटर एनएमआईटीज, better safety, better protection, better services and better credibility. Credibility की जब मैं बात करूंगा तो client satisfaction and also to promise from everybody कि हम environment का और nature का ख्याल करेंगे. मेरी ये प्रायोरिटी है सब कस्टमर के साथ रहकर. So if you would like to be closer to the nature and the environment, like Vijay ji said, that
invest with Ramanathan Group, come forward and be part of Ramanathan Group. एक आखिरी question before we move on to the rapid fire round. And रैपिड फायर राउंड में काफी मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आंसर करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक आखिरी क्वेश्चन, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं रामरतन ग्रुप के जो कि वो कर रहा है टू लाइक जैसे हम बोलते हैं हमारा मिशन है रियल एस्टेट फार्म हाउस सेक्टर बनाना, हमने कितनी कम्युनिटीज बना दी है, सो व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स वैल्यूज, हम जो एथिक्स की बात करते हैं? देखिए, जो हमें विरासत मिली है, हमें अपनी विरासत को नमस्ते करना पड़ेगा। विरासत ने जो किया उससे सीखना पड़ेगा। विरासत ने जो हमें दिया उसका मान सम्मान करना पड़ेगा। और जो विरासत में हमें व्यापार के तौर तरीके दिए उनको ध्यान में रख के और आज के समय के अनुसार उनको अपग्रेड करके फ्यूचर को ध्यान में रख के हम नई पॉलिसीज लाए, नया थॉट लाए, नया विजन के साथ उसको डिलीवर करें जिससे 2 जनरेशन हमारे साथ रहे। और सबसे अहम बात, हम अपने विश्वास जो हमें विरासत में मिला है कस्टमर को ये कह के दें कि जी आप भी हमारे हैं, हम भी आपका, क्योंकि कस्टमर हार्ड अर्न मनी हमारे साथ लगाता है, एक विश्वास हमसे लेता है, एक विश्वास हमें उसको देना है और यही हमें विरासत में मिला है। अच्छा करो, अच्छे रहो तो आने वाला कल अपने आप अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा करो तो फल अच्छा ही होगा। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे जा रही हूँ। बिफोर ऑफ कोर्स वी हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आवर पीपल, आवर व्यूअर्स। रैपिड फायर राउंड, विजय जी, रैपिड फायर राउंड बोला जाता है जो कि आज का मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जल्द से जल्द आंसर करना है उसका। ठीक है, आप रेडी हो? प्लीज। ओके, डिस्क्राइब रामरतन ग्रुप इन 3 words. रियलिटी, लॉयल्टी, रॉयल्टी। रियलिटी, रॉयल्टी, रॉयल्टी। रॉयल्टी, परफेक्ट। मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट, आई एम श्योर आप इसका बोलने वाले हैं, मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट्स मेरे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको बहुत दिल के पास हो? बात तो आपने मैं अपने क्वेश्चन का खुद भी जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है और मेरा जवाब भी यही रहेगा कि एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी जो भी चीज़ बनी है बहुत दिल से बनी है, बहुत मन से बनी है, सबकी मेहनत से बनी है और सबके लिए बनी है। तो मेरे लिए राम रतन का किया हुआ हर काम रिस्पेक्टफुल है, यादगार है। विजन फॉर रियल एस्टेट फ्यूचर? ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, different things to do as per the generation, using digital, moving forward with new segments like what new generation looking for, thinking of everything all together, need of the hour, getting everything fast, but yes, with nature, with good environment, and with stress-free life. एक्साइटिंग, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपने दी हो? मेरी एडवाइस तो यही रहती है कि आपका प्रिंसिपल सेफ रहे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, ऐसा डिसीजन लीजिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए। जहाँ पे मैं भी इस बात को पब्लिकली रिपीट करता हूँ, सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी इज अ राइट ऑफ एवरीबडी हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट, नॉट विद मी, विद एवरीबडी। मुझे पता है क्योंकि आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और आपकी जो ऑनेस्टी है, आपके जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस यू एज वेल। आपको कोई ऐसी एडवाइस मिली हो जो आपको याद है और आप उसको करते हैं? बिल्कुल मिलती है, रोज मिलती है और मैं रोज उसको करता हूँ कि भाई जो आपकी विरासत है उस विरासत को ध्यान में रख के ही काम करिए और आने वाली जनरेशन के लिए सोच के काम करिए, अच्छा काम करिए, रिस्पेक्टफुल काम करिए, कोशिश पूरी है। एक्सीलेंट। बेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज जिसे बोलते हैं, चैलेंजेस रोज है एंड आई एम श्योर रियल एस्टेट पे तो बहुत ही ज्यादा होंगे, नोइंग कि रामरतन ग्रुप हैज बीन, इट्स अ मैसिव एंड वी आई हैव सीन द कम्युनिटीज व्हिच आर बीइंग एसोसिएटेड, बट ऐसा कोई एक बिगेस्ट चैलेंज अगर आपको याद हो जो आपने रिसेंटली फेस किया हो? मैं इसका बहुत डिफरेंट आंसर देना चाहूँगा। ज़िंदगी सफलता के लिए संघर्ष है और संघर्ष कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता, वो खुशी का पल है। अगर आपको मिला है तो सोच लो कि परमात्मा का आप पे आशीर्वाद है और वो आपका नाम और पहचान दे रहा है, तो मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मैं इसको मेहनत का नया रूप कहूँगा। क्या बात है, आई एम श्योर सभी बहुत इंप्रेस होने वाले हैं। बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ, शायद मुझे इसका आंसर पता है बट मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं, बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ। जो बुजुर्गों ने किया, जो फादर साहब ने किया, जो परिवार ने समर्थन मुझे दिया और जो सहयोग मुझे किसी से भी मिला,
और उसमें कुछ नाम्स हैं जो मैं ले सकता हूँ, बट किसी कारण नहीं जी। लेना चाहूँगा। बट यस, राम रतन कुछ खास है, इसका अपना विश्वास है। मेरी विरासत राम रतन है, मेरा आज राम रतन है और मेरा कल राम रतन है। ये मेरी खुशी है और यही मेरा सब कुछ है। बिल्कुल। और मैं आज जब शूट के लिए आ रही थी, मैंने देखा था कि हमारा रेडियो में भी काफ़ी रेडियोज़ में हमारा राम रतन ग्रुप का आ रहा होता है। आई सीन द होर्डिंग्स व्हिच आर बीइंग एसोसिएटेड एंड आई थिंक राम रतन ग्रुप इज़ ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स विद सो मेनी थिंग्स। इतनी बड़ी लेगेसी है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है। विजय जी, बिफोर वी एंड द शो, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी विशेस हैं एंड आई एम श्योर मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगी कि आप जो भी हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, जो भी हमें विशेस दे रहे हैं, आप प्लीज सभी को जरूर रिप्लाई कीजिएगा, बिकॉज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब सारे माध्यम से लाइव जा रहे हैं। सो फ्यू क्वेश्चंस। रिया सूरी हैज आस्क्ड व्हाट ऑल सर्विसेज डू यू ऑफर? हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं? एवरीथिंग यू थिंक ऑफ। रामरतन ग्रुप का थॉट प्रोसेस ये है कि जब भी आप रामरतन ग्रुप के किसी भी आदमी के टच में आते हैं, यू विल गेट एवरी सॉल्यूशन फॉर योर रिक्वायरमेंट। ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब हम फार्म हाउस द कम्युनिटीज में करते हैं, और क्या क्या हमारा है, क्या हम कॉर्पोरेट और वो बेस्ट। सब भी करते हैं? देखिए जो आफ्टर सेल मेन तो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। प्रोडक्ट बेचना, जी। प्रोडक्ट लेना वो एक अलग बात है, बट आफ्टर सेल सर्विसेज, चाहे वो लीगल की हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी की हो, चाहे मैन पावर की हो, चाहे वो आपकी किसी जी। हेल्प की हो, चाहे किसी तरह की लाइसेंसिंग की हो, चाहे किसी और तरह की लोकल सर्विस की हो, तो रामरतन गुरु आफ्टर सेल सर्विस में बहुत फोकस करना चाहता है, जिससे हमारा जो कस्टमर है उसको स्मूथनेस मिले और उसको कहीं भी इधर उधर ना जाना पड़े, डिपेंडेंट फील ना करना पड़े। Perfect. I think Ria, that answers your question. Can we have the next question? Kavita asked, do we have any projects for organic farming? डेफिनेटली Organic farming के projects? रामरतन को प्योर एग्रीकल्चर लैंड प्रोजेक्ट ला रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पे सिर्फ आप आने वाले दिनों में जहाँ पे रामरतन गुरु की पॉलिसी रहेंगी कि इस उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी कंक्रीट नहीं होगा, सिर्फ एग्रीकल्चर होगा, ऑर्गेनिक होगा। और वो भी जो वर्ल्ड Very की आज आज का शॉर्ट थॉट है, जैसे इसराइल से टेक्नोलॉजी लाए हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी लाएंगे, जिससे ग्रोथ ज्यादा हो, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। Kavita, I think Vijay sir has answered. Devashish has a question. Other than owning a farm with Ram Ratan Group, are there any investment opportunities to appreciate or wealth by investing in land? 100% लैंड में इन्वेस्टमेंट जो भी आदमी करता है ऑन अ एवरेज बेसिस, अगले नॉर्मली 3 साल में उसका पैसा डबल होता है। क्योंकि जहाँ पे अपकमिंग एरियाज हैं, जो अपकमिंग एरियाज है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, जहाँ पे डेवलपर बहुत फोकस है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह से आज चीज़ें नवगांव में बढ़ रही है, एवरीबडी नो नवगांव, तो उस नाते आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पुटिंग एनी मनी इन योर इन लैंड, यू विल गेट बेटर प्रॉफिट फ्रॉम आवर साइड। और एक बात आपने कही, मैं इसका खुद जवाब देना चाहूँगा कि आपने होर्डिंग्स देखे, आपने एफएम देखा। देखिए, ये परिवार का सहयोग है, राम रतन से जुड़े हर उस आदमी का सहयोग है, चाहे वो परिवार से है, चाहे वो हमारे ऑफिस से है, चाहे वो ऑफिस परिवार से है, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे एसोसिएट्स हैं, चाहे वेल विशर्स हैं, चाहे वो फाइनेंसर्स हैं, कोई भी है, वो सब हैं, तो राम रतन यहाँ हैं। और राम रतन यहाँ है क्योंकि भगवान की पर मैं कृपा है। न्यूज़पेपर तो भूल ही गई। न्यूज़पेपर्स में भी मैंने ऐड देखे हैं, और मैंने काफी एड्स देखे। इसका मतलब है कि राम रतन ग्रुप अपना इतिहास, आई मीन इट्स ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर एंड आउटस्कर्ट्स, मैंने हर जगह, और ये मैं नहीं कह रही, मेरे को लोग समझेंगे शायद बायसनेस की वजह से कह रही है, बट इट्स नॉट मी, इट्स द पीपल हुम वी मीट। हम जिनसे भी मिलते हैं, मैं जिनसे मिलती हूँ, वो जरूर राम रतन ग्रुप का नाम लेता है। अच्छा सॉरी, होता आई है ना, जस्ट हैड टू कट इन। देखो ऐसा होता है ऋचा जी, कभी कभी कुछ नाम की मर्यादाएं होती है। हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, बट देखिए अच्छा है ना, इसी बहाने से आपने राम का नाम लिया, अरे वाह, एक क्या खुशी भी है बात ना, राम का नाम लिया। है। हर आदमी कहता है कि भाई भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, तो राम रतन के को याद करते हुए आप अल्टीमेटली सही एक बात धर्म है। कर रहे हैं, तो ये कुदरती अच्छा काम भी बहुत ही होगा। प्यारी बात कर दी जी। I think this answers your question, Devashish. Thanks for your question. Can we have last two questions? मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसा बोला जाता है, so in which state are you looking forward to expand your working? The next question which I'm I have got I'm totally is this. focused on Bombay Express Highway right now। काफ़ी पोटेंशियल Okay. है, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। नवगांव की सराउंडिंग्स में काफ़ी और एरियाज़ हैं, जैसे भरतपुर है, मथुरा जी हैं। और नवगांव के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ कि हॉस्पिटलिटी के नाते भी, सफारी करने के नाते भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। रैथमपुर भी नज़दीक है,
और सईस का भी नज़दीक है, पांडुपुल वगैरह भी है, तो धार्मिक जगह भी काफ़ी वहाँ पे, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे अगले 10 से 15 साल की ग्रोथ का एरिया है और आने वाले कल का गुड़गांव बसने जा रहा है, बेटर देन एवर। द रीजन इज बिहाइंड दैट कि न्यू गवर्नमेंट्स की जो जितनी भी नई पॉलिसीज आ रही हैं वो बहुत फ्यूचरिस्टिक आ रही हैं। सरकार का विजन 25 साल का है, सरकार का विजन अगले 25 साल के सिस्टम का है। तो रामरतन ग्रुप भी उसी तरह को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है रामरतन ग्रुप के अंदर, चाहे वो बेसिक एनिमिटीज है, उसी चीज सोच को ध्यान में रख के काम कर रहा है कि अगले 15-20 साल के लिए हम एक रोड मैप बना रहे हैं। Very well answered. The last question which we can take, इसके आगे के क्वेश्चन हम शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन जरूर विजय जी की जो टीम है वो क्वेश्चन जरूर उन तक पहुंचाएंगे and he will be getting back to each one of you. If I'm looking for investment in real estate in Dubai versus investing in your farm, what is the better option and why? अपना देश सबसे महान। इन्होंने बहुत ही सरल और शब्द में बोल दिया कि अपना देश महान। देखिए जी, कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कंपेयर किसी भी हर चीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, आज दुनिया भारत की तरफ आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत है भारत में, पोटेंशियल बहुत है भारत में, ग्रोथ बहुत है, नॉलेज बहुत है, एम्बियंस बहुत है, तो नथिंग बेटर देन इंडिया टुडे। मेरा भारत महान, विजय जी बिल्कुल सही और सरल शब्दों में बोल रहे हैं। कुछ लास्ट लाइंस बिफोर वी एंड द शो, सम लास्ट लाइंस फॉर आवर व्यूअर्स, विजय जी, स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ द टॉक शो लग्जरी लिविंग, और हम ऐसे ही हर सैटरडे टॉक शो करते रहेंगे। कुछ लास्ट लाइंस बिफोर वी एंड द शो। जुड़े रहिए रामरतन से, बहुत कुछ पोटेंशियल है यहाँ, बहुत कुछ पॉजिटिव है यहाँ, अपनापन है यहाँ, और रियल एस्टेट से जुड़िए क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो ग्रोथ है, रियल एस्टेट के अंदर जो पोटेंशियल है, और रियल एस्टेट में आने वाले फ्यूचर को भी आप सिक्योर कर सकते हैं। ऑलवेज बी पार्ट ऑफ रियल एस्टेट एंड बी पार्ट ऑफ रामरतन ग्रुप। हम लोग आपकी केयर के लिए, आपको टेक केयर करने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट की हर जवाबदेही के लिए साथ हैं, आपसे वादा करते हैं, हम आपके साथ हैं, और हम अपने किए हुए हर उस वादे को निभाएंगे क्योंकि हमें आने वाले कल का भी पूरा ख्याल है। जब हम आज किसी वादे को निभाएंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, और यही सोच के हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच विजय जी, इतनी बेहतरीन शुरुआत करने की इस टॉक शो की। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग अस। प्लीज डू कमेंट व्हेन यू गो थ्रू द चैट शो। आप जो भी कमेंट्स करेंगे वो जरूर विजय जी आप सबको रिप्लाई करेंगे। सर, आई कैन टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू, आप जरूर सबको कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा, बिकॉज हमारे व्यूअर्स ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। And this was the first episode of the entire series which you are going to see the entire 2024 Luxury Living by Ramanathan Group. Thank you so much for joining in today, and we're going to meet next Saturday at 1:30 p.m. with a new guest. Thank you. Thank you, Vijay sir.